अस्सलाम वालेकुम दोस्तों प्रोग्राम कृषि दर्शन खसूसी शुमार हेत तुंदिस खदमत मज हाजिर तहे दिल सान तुंद खुश आमदीद करान अजकिस यथ प्रोग्रामस मज अजुक यह प्रोग्राम खास प्रोग्राम तिकाज वातनावो तह तान अहम रिपोर्ट यमि जानकारी तह मेल हाल 4 जुलाई 2015 शेर कश्मीर ज़रा यूनिवर्सिटी शेयुम कन्वोकेशन मुनक़द कोर्मुत अत कन्वोकेशनस मज मेहमान खसूसी एग्रीकल्चर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनाब शिवराज सिंह चौहान बे अत मजलिस मज LG जम्मू एंड कश्मीर जनाब मनोज सिन्हा जी तो बे CM उमर अब्दुल्ला साहब तत मौजूद अथ तकरीबी पे मुफसल रिपोर्ट तैयार कोर्मुत वली वुचो यो रिपोर्ट। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर शेम कन्वोकेशन सपुद 4 जुलाई 2015 ईस्वी सुकोस्ट किस कन्वेंशन सेंटर्स मज मुनक़द यथ मज मरकजी वजीर बराए ज़राअत जनाब शिवराज सिंह चौहान मेहमान खसूसी सिंध हैसियत शामिल सपद। अत कन्वोकेशनस मज बाकी लुकव अलाव जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा वजीर आला उमर अब्दुल्ला तो जम्मू कश्मीर वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर श्री अटल दुल्लू प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शलिंदर कुमार तो बाकी इंतजामी एहलकार ते शामिल। कन्वोकेशन आगाज सपोत कौमी तरान से कश्मीर के शेमिस कन्वोकेशनस में शामिल तलब इल्म तदरीसी अमल ज़राअत तो बाकी मुंसलिक इदारन से वाबस्त मुंतजमीन तो मेहमानन हंद इस्तकबाल कोर यूनिवर्सिटी हिंद वाइस चांसलर जनाब नज़ीर अहमद गनई सबन तो कोरक यूनिवर्सिटी में सब्दान तदरीसी तजुर्बती सरगर्मियन मुतल्लिक मुकम्मल खाक पेश। Jammu and Kashmir is first in the country to script the policy for evergreen revolution, and we call it as HADP. This is based on 3 very important verticals that are fundamental to address 12 of the 17 Sustainable Development Goals. It will improve our ranking on social developmental indices that will match to the developed nations and help us realize the vision of the Viksit Jammu and Kashmir. In next 5 years, we aim to make agriculture a 1 trillion rupee economy, which is equivalent to $10 billion, and we aim to scale it to $80 billion by 2047. And that time it would be 300% more than the total state GDP of Jammu and Kashmir as in 2024. Proudly, SCOAS Kashmir had a very significant role in ideating and scripting this policy. We offer 14 technology and market-driven undergraduate programs, while as every other university offers an average of 6 programs. We offer 67 masters and 55 PhD programs. Honorable Chief Guest Sir, we have brought all the PG programs, which number 122, in sandwich mode. Every student of this university is required to complete his degree from 2 universities. SCOAS Kashmir is one. Second could be any university with which we have an MOU or not. It is nowhere in the country and much beyond national education policy. We are the first in the country to institute a 4-year degree program in artificial intelligence and agriculture with IIT Mandi. This is the first university to be in partnership with any IIT. We are setting up the most advanced Fab Lab in any university and the most advanced AR/VR powered 3D virtual lab. We have a very strong research base in genetic engineering. Our Honorable Union Minister in Agriculture has very recently released the first gene-edited rice varieties. And today we share another big news with the Honorable Sir that SCOAS Kashmir has produced the first gene-edited sheep in the country. And we are therefore in the elite group of the institutions who have perfected this technology. We are the pioneers in genetically engineered vaccines, genome sequencing, molecular diagnostics,
for which we are filing the international patents. Sustainable agriculture in Jammu and Kashmir is crucial for preserving our fragile ecosystem, ensuring food security, and protecting soil, water, and biodiversity. We at SPOST Kashmir have initiated the most coordinated and advanced approach to combat it, which include 120 high-yielding climate-resilient varieties. We are establishing the most advanced protected cultivation system and sensor-based micro-irrigation system to mitigate the impacts of the climate change. We are establishing the Center on Natural Farming for Regenerative Agriculture. We are establishing the Bio-Input Production Center to manufacture the alternatives to the chemical fertilizers and agrochemicals to reduce the pesticide residues in the crops. About our innovative extension model, I will not praise now, but would only say that in another 1 year, we will receive an award with the august hands of our chief guest, when sir, presenting it to you after 1 year. SPOST Kashmir ki shemis convocationas maz आई यूनिवर्सिटी मज तालीम प्रावन वालन 5250 तालीम इल्मन मज तालीमी डिग्री बगरान यमो यूनिवर्सिटी हिंदन मुख्तलिफ शोबन मज तालीमी ते तजुर्बती अमलन मज हिस्से नित कामयाबी सान पन हदफ हासिल कोरमुत ओस. Dean Faculty of Agriculture is requested to receive degree certificates and gold medals on behalf of graduate students of agriculture and sericulture. Dean Faculty of Veterinary Sciences and Animal Husbandry is requested to receive degree certificates and gold medals on behalf of graduate students of Faculty of Veterinary Sciences. Dean Faculty of Fisheries is requested to receive degree certificates and gold medals on behalf of graduate students of Fisheries Sciences. Dean Faculty of Forestry. Dean Faculty of Forestry is requested to receive degree certificates and gold medals on behalf of graduate students of Faculty of Forestry. Dean Faculty of Horticulture is requested to receive certificates and gold medals on behalf of graduate students of Horticulture and Agriculture Engineering. SPOST कश्मीर की तरफ मुनक़द शेमी कन्वोकेशन खास कथ रोज यह कन्वोकेशनस मज आई 445 मेरिट सर्टिफिकेट बगरान यथ मज खवातीन तालिब इल्मन हिंस कारकर्दगी नुमाया रोज तो प्रावेत 334 मेरिट सर्टिफिकेट बेहतरीन कारकर्दगी हुंद मुज़ाहिर करन वालन 150 स्टूडेंटन आई गोल्ड मेडल दिन यमन मज 115 खवातीन तालिब इल्म आसन. Faculty of Agriculture. BTech Agri Engineering. Amir Hussain Darzi. Arbina Manzoor Shah. अथ मौकस पे जम्मू कश्मीर वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला तालिब इल्मन डिग्री हासिल करनस पे मुबारक तो वोनुक नौजवान साइंसदानन तिम करन पन्न सलाहियतन हुंद भरपूर इस्तेमाल तो करन जम्मू कश्मीर च तरक्की मज पनो रोल अदा. This university was born out of a vision to empower the youth of Jammu and Kashmir through agriculture, science and innovation. That vision, rooted in the ideals of Sheikh Mohammed Abdullah, finds expression today in every lab, lecture hall and field station of SPOST. Over the years, SPOST has grown into a center of excellence
You pioneered research in temperate horticulture, built models for sustainable farming in high-altitude regions, and contributed to critical work in animal husbandry and organic practices. Your institution is not just producing graduates, it is producing problem solvers for the grassroots. In Jammu and Kashmir, agriculture is not only the backbone of our economy, it is our culture, our identity, and for many our daily bread. Over 70% of our population are either directly or indirectly connected to this sector. But we know this truth. The agriculture of yesterday cannot meet the challenges of tomorrow. We face climate change, we face land degradation, we face market volatility, and we face the hopes of a generation that wants not only to survive, but to thrive. That is why our administration has launched a series of ambitious, data-driven reform programs that are not just transformative on paper, but tangible on the ground. The Holistic Agriculture Development Program is one of these cornerstones of change. With an investment of over 5,000 crores, HADP is bringing together science, finance, governance to transform J&K into a hub of high-value, high-tech, and high-return agriculture. Whether it's precision farming, protected cultivation, dairy modernization, or post-harvest processing, we are working hand in hand with scientists, entrepreneurs, and our farming communities. We are supporting 29 major projects, including high-density apple and walnut plantations, sheep husbandry clusters, saffron revitalization, and innovative agribusiness models. Graduates of SCOST, this is your playground, and this mission is your field. Our mission Yuva, powering young aspirations, this is another pillar of our vision for the youth of Jammu and Kashmir, where lakhs of youth will be engaged in skilling, mentorship, and entrepreneurship programs. This will take place at the district level, where we will support the building of confidence and capability, and we've already started with the support for hundreds of startups in food processing, agri-tech, dairy, and floriculture, sectors where SCOST graduates can lead from the front. If you have an idea, we'll fund it. If you have a plan, we'll partner you. If you have the courage, we will create the platform. Graduates are our new torchbearers. To all of you who graduate today, the world needs your knowledge, yes, but more importantly, it needs your courage, your compassion, and your character. Let me leave you with 3 simple requests. Be bold with your ideas. Don't just look for jobs, create them. Build agri-startups. Consult with farmer groups. Digitize extension services. You are uniquely trained to bridge science and society. Stay rooted in your soil. Never forget your land and the people that raised you. As you rise, let others rise with you. Whether you go to Bengaluru or to Berlin, carry J&K in your heart. And thirdly, contribute to a peaceful, prosperous Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is on the path of a transformation, economically, socially, and politically. Help us shape this new story, not through slogans, but through service. The future of Jammu and Kashmir is not just in government files, it is in your hands. Let us build a future that is scientific, sustainable, and full of dignity for every citizen. I once again congratulate all the graduates, degree recipients, and awardees today. Khuda Hafiz. लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा यम SCOST कश्मीर चांसलर तह बोव यूनिवर्सिटी हज कारकर्दगी पे इत्मीनान तो कोरुक डिग्री प्रावन वाले तलब इल्मन मुल्क तो जम्मू कश्मीर च तरक्की मज हिस्सेदार बननुक तलकीन LGN वोन विकसित भारत तो विकसित जम्मू कश्मीर ख्वाब नौजवान सत वाबस्त यथ पे संजीदगी तो मेहनत सान काम करने जरूरत इस खास कश्मीर के सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
मैं माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का जम्मू कश्मीर में अपनी ओर से विश्वविद्यालय के चांसलर के नाते आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एजुकेशन सिस्टम में कन्वोकेशन से जुड़े एक मिथक के बारे में मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगा। अनेक लोग ऐसा मानते हैं कि कन्वोकेशन एक यात्रा की समाप्ति है। मुझे लगता है दरअसल कन्वोकेशन समाप्ति नहीं बल्कि एक शुरुआत है। सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स का एक नया जीवन आज से शुरू हो रहा है। वह पुराने जीवन को आज अलविदा कर रहे हैं। जर्मन राइटर, एक बड़े मशहूर राइटर थे, हरमन हेसे, उन्होंने कभी कहा था कि इन ऑल बिगिनिंग ड्वेल्स द मैजिक फोर्स फॉर गार्डिंग अस एंड हेल्पिंग अस टू लिव। और हरमन हेसे के इस स्टेटमेंट से मैं कह सकता हूं कि कन्वोकेशन इज नॉट द एंड, इट इज द बिगिनिंग। Now the door to a new life is opening for the students. विद्यार्थियों से मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, क्लासरूम से लेकर लैब में आपने जो सीखा है अब उसे वास्तविक दुनिया में आजमाने का अवसर आपको मिलने वाला है। अब सपनों और कल्पना की दुनिया से बाहर निकलकर जीवन की वास्तविकता के यथार्थ से दो हाथ करने का अवसर अब आपको मिलने वाला है। अपने जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण या विकसित भारत के निर्माण की जो परिकल्पना की होगी उसे बिल्कुल वैसा ही करने का वक्त अब आपके पास आया। और इसलिए हमारे देश में प्राचीन समय में गुरुकुल परंपरा से लेकर आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कन्वोकेशन को एक नए आरंभ के प्रतीक में ही माना जाता रहा है। मुझे प्रसन्नता है और गर्व भी है कि एक बार फिर हमारी बेटियों ने ये साबित किया है कि वही असली शक्ति की प्रतीक हैं और मां सरस्वती की साधना होगी। आज के कन्वोकेशन में 150 गोल्ड मेडल में से 115 गोल्ड मेडल हमारी बेटियों ने हासिल किया है। मैं उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। 445 और 45 सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट में बेटियों के हिस्से 334 सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट आए हैं। आज के कन्वोकेशन में अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स, पीएचडी की कुल 5,250 डिग्री में से 2,661 डिग्री हमारी बेटियों के हिस्से आई। मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारी बेटियां एजुकेशन के लगभग हर स्ट्रीम में अपनी प्रतिभा से नई उपलब्धियां और बुलंदी हासिल कर रही हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में मैं समझता हूं कि भारत की बेटियां इनोवेशन इकोसिस्टम की आज प्रमुख ताकत बन रही है। आज लगभग हर स्तर पर वह वीमेन साइंटिस्ट और टेक एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। हजारों साल पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत के बाद से ही सेक्टर में महिलाओं ने धरती का सीना चीरकर खेती में खुशहाली पैदा करने का काम किया, लेकिन उनका स्थान लंबे समय तक गुमनाम नायकों की तरह ही था। लेकिन सर्च के मुताबिक 73% महिलाएं एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी, जबकि पुरुषों की संख्या मात्र 55%। अब उम्मीद बढ़ी आज के बाद कि एग्रीकल्चरल साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारी बेटियों की उपलब्धियां, कृषि सखी, पशु सखी जैसे इनिशिएटिव्स उन्हें गुमनामी से बाहर निकालकर दुनिया के सामने एक मजबूत उपस्थिति के रूप में दर्ज कराएंगे। स्टूडेंट्स, आप एक ऐसे कालखंड में प्रोफेशनल वर्ल्ड में कदम रख रहे हैं जब भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में पिछले 11 वर्षों में अनेक रिफॉर्म से गुजरते हुए यह देश की इकोनॉमी का प्रमुख आधार बन चुका है। और वह समय बीत गया जब किसान खेती के इनपुट, प्रोडक्टिविटी और बाजार के लिए परेशान हुआ करता था, और बीज से बाजार तक की व्यवस्था करके भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया है कि हमारा किसान सिर्फ अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती नहीं करेगा, बल्कि अपने परिवार के स्वर्णिम भविष्य और स्थायी इनकम के लिए पसीना बहाएगा। फॉर्म मैकेनाइजेशन,
डिजिटल इनोवेटिव फार्मिंग टेक्निक के द्वारा मात्रा में स्मार्ट खेती के लिए नई पहल लेने वाले देशों में आज भारत अग्रणी बन चुका है। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीक के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर में नई क्रांति लाने का आज वो सभी प्रयास और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मरकजी वजीर ज़राअत जनाब शिवराज सिंह चौहान सिंह हाजिरी मज मुनक़द शेम कन्वोकेशनस यथ मज बड़िस तादादस मज यूनिवर्सिटी हिंद माया नाज तलब इल्म शामिल सपद आव सथी शानदार तरीकस मज तिहंदन इल्मी हुसूलन पे तिमन मुबारकबाद पेश करना। कन्वोकेशनस मज आय कुलहुम पट 5250 डिग्री ग्रेजुएट, मास्टर्स तो PhD डिग्री तलब इल्मन अता करना। यथ मज मजमूई तौर खवातीन तलब इल्मन हिज कारकर्दगी लबन आई। वजीर बराए ज़राअत जनाब शिवराज सिंह चौहानन कोर तलब इल्मन यूनिवर्सिटी मजीद तालीम हासिल करित पनुन तो मुल्कुक मुस्तकबिल तामील करनुक तलकीन तो बवक वजीर अजम नरेंद्र मोदी सिंदन मुख्तलिफ प्रोग्रामन मुतल्लिक की जानकारी यम विकसित भारत बनावनस नस्बत करने यवान छे। कल मैं श्रीनगर में हूँ। यहाँ की हवाओं की शीतलता, यहाँ की माटी की सुगंध, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ के लोगों की आंखों के प्यार ने मेरा मन मोह लिया और मुझे गाना याद आ रहा है। दिल कहे रुक जा रे रुक जा रे रुक जा, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। भारत का मुकुट मणि है जम्मू कश्मीर। मैं कल से घूम रहा हूं। हाँ, ये बात में ऐतराज मुझे जरूर है बीसी साहब, मुझे आपने चीफ गेस्ट बना दिया, मुख्य अतिथि। मैं मुख्य अतिथि इसलिए नहीं हूं, मैं मनोज सिन्हा जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे, क्योंकि अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि क्या नहीं होती, बिना बताए कभी भी टपकता है। लेकिन मेरी तिथि तो चांसलर सर ने तय करवाई थी। और दूसरी बात, मैं श्रीनगर में अपने भांजे भांजियों के बीच मेहमान कैसे हो सकते हैं, हम भी मामा हैं। कल से मैं घूम रहा हूं। आते ही हमने मुख्यमंत्री जी के साथ एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पर व्यापक समीक्षा की, कैसे जम्मू कश्मीर तेजी से आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, और विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू, विकसित कश्मीर और समृद्ध किसान, ये हमारा संकल्प है। इसको हम पूरा कर ही गए किसान। मुझे एक ही बात कहना चाहता हूं, आज डिग्री प्राप्त करने के बाद दीक्षा का अंत नहीं हुआ है। दीक्षांत का मतलब दीक्षा का अंत नहीं है, नई दीक्षा की शुरुआत है। तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया, क्लास से लेके क्लासरूम से लेके लैब तक, अब उस ज्ञान को बांटने का समय है बेटा बेटी। और बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं, खेती के बिना ना दुनिया का काम चल सकता, ना देश का काम चल सकता, न जम्मू कश्मीर का काम चल सकता। खेती अन्न पैदा करती है, फल पैदा करती है, सब्जियां पैदा करती है, जो और कहीं नहीं इंडस्ट्री में नहीं बन सकती। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ आज भी खेती है, और आज भी आधी से ज्यादा आबादी को रोजगार अगर मिलता है तो केवल खेती से मिलता है। और जहां तक जम्मू और कश्मीर का सवाल है, यहां के फल, यहां के फूलों का चटक रंग, यहां की सब्जियों का स्वाद, ये तो अद्भुत है। और कृषि मंत्री के रूप में मेरा संकल्प है राज्य सरकार के साथ मिल, राज्य के हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के साथ मिलकर हम हार्टिकल्चर का हब जम्मू कश्मीर को दुनिया के हार्टिकल्चर का हब बनाएंगे। अभी कई कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी साहब कह रहे होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम,
वो नई सफलताएं प्राप्त कर रहा है। कल MITS के साथ भी हमारी जो बैठक हुई मुख्यमंत्री जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब के साथ, यह जरूरत है अच्छे पौधों की क्लीन प्लांट। जम्मू कश्मीर का सेब सचमुच में अद्भुत है, लेकिन पौधे हमको बाहर से बुलाना। ये नहीं होगा। कल ही हमने तय किया है कि क्लीन प्लांट सेंटर 150 करोड़ रुपए की लागत से हम खोला जाएगा। हम प्लांट में तैयार करें। मैं इस जान के सारे वैज्ञानिकों को ये कहना चाहता हूं, जो हमारी सेब की उत्पादकता है, यूनिवर्सिटी ने 5000 एकड़ में हाई डेंसिटी वाला सेब की खेती पहले आपने यहां शुरू की, 5000 हेक्टेयर में प्रारंभ हो गई पूरे जम्मू कश्मीर में, जिससे उत्पादन 60 टन हुआ है पर हेक्टर। पहले कितना था? 10 टन, 6 गुना हुआ है। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का सेब पूरे दुनिया में जाए, भारत को इंपोर्ट ना करना पड़े, हमारा सेब एक्सपोर्ट किया जाए। और किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत सरकार आपके हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपके हित सुरक्षित रहेंगे। खेती में अलग अलग कई तरह के इनोवेशन करना है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आपका ज्ञान काम आना चाहिए। इसमें आप स्टार्टअप प्रारंभ करें, आप ऐसे कुछ खेती के क्षेत्र में जाएं, आप ऐसे कुछ अलग अलग क्षेत्रों में जाएं। स्वास्थ्य की सेवा में इस यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा, 70% विद्यार्थी या गवर्नमेंट सर्विस में IAS बने, IFS बने। लेकिन एक बात मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। अपने लिए तो सब जीते, कीट पतंगे भी जीते, पशु पक्षी भी जीते। अपने लिए जिए तो क्या जिए? तू जी दिल जमाने के लिए, जो औरों के लिए जीता है, देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, दुनिया के लिए जीता है। वास्तव में उसी का जीवन है। तो तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे कैरियर को बनाने में तो काम आए, लेकिन जमाने के काम भी आए, और विशेषकर किसानों के काम आए। मेरे बेटा बेटियों, ये कोशिश जरूर करना। इस ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान मत रहने दो। स्कॉस्ट कश्मीर किस कन्वेंशन सेंटरस मज मुनक्किद 6 कन्वोकेशनस मज शामिल तलबे इल्मन हिंदिस एजाजस मज यह प्रोग्राम सपूद यह पैगाम है इक्तदाम पजीर ज तालीम तो तहकीक सह अख मुरक्कब येम के बदौलत न सिर्फ मुल्क खुशहाली तरक्की मुमकिन बल्कि तालीमी तो तहकीकी अमल कुल हम बदलाव पैदा करनस मज सठे जरूरी। मरकजी वजीर बराए ज़राअत जनाब शिवराज सिंह चौहानन कोर स्कॉस्ट कश्मीर किस पन्निस दौरस दौरान यूनिवर्सिटी कैंप शालीमारस मज हाई डेंसिटी चूंड बागन हुंद मोयना। येते वजीर मौसूफस हाई यील्ड एप्पल वैरायटी कुलन नस्बत जानकारी फराहम करना आई, यम कुल गोड्निकी वरिय फसल दिने सलाहियत थावान छे। देखिए, खेत भारतीय कृषि की अर्थव्यवस्था हाई डेंसिटी वाली सेब लगाई है, उससे लगभग ये बता रहे हैं कि पहले 1 पेड़ लगता था, उस जगह में 10 पेड़ लगा सकते हैं। और पहले जो आमदनी 3-4 लाख रुपया तक सीमित रहती थी, अब वो 15 लाख रुपया प्रति एकड़ तक पहुंच जाती है। तो टोटल चेंज हो रहा है, ये किसानों की जिंदगी बदलेगा ये अभियान। वाइस चांसलर सिंदिस कॉन्फ्रेंस हालस में समखे मरकजी वजीर जनाब शिवराज सिंह चौहानस मुख्तलिफ जमींदारन हंद वफूद यमन मज कोंग, कोल्ड स्टोर, बी कीपर, बागवल तो सब्जी से वाबस्ता अफराद शामिल। यमो कर मरकजी वजीर मुख्तलिफ मुश्किलातन मुतल्लिक ज़ानियाब। मरकजी वजीर जनाब शिवराज सिंह चौहानन दुत वक्तस यकीन ज तिहंदन जायज मुतालबातन पे संजीदगी सान गौर करने तो मुश्किलातन हुंद अजाल करने बापत यन ठोस इक़दाम तुलना।
دوستو یہ سون ازیک خاص پروگرام یت مز تہ تام واتنو تفصیلی رپورٹ واتنو شیم کنوکیشن اس زن شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی منعقد کرمت تہ پور امید کہ تہ آ پروگرام پسند آمت تو پن رائے واتنو تھی اس تان ونکس یتھی انشاء اللہ آئندہ گھر تہ بے ملاقات بہو اللہ تعالیٰ سوال تو دیو پور کشی درشن ٹیمس ونکس اجازت السلام علیکم.